अस्सलाम वालेकुम ladies and gentlemen, मैं हूँ राजा सरोर सुहेब. और मैं हूँ दुआ अफसार. We welcome you to our show Breakout. Today on this show, we will be discussing our topic culture boycott, whether there should be a culture boycott with India or not. And to discuss this topic, we have a very special guest, a very well-renowned journalist, and he is the current chairman of Pakistan Electronic Media Regulatory Authority, Mr. Absar Alam. Thank you so much for joining us, sir. Sir. Sir, my first question to you would be on a lighter note that you have been a journalist for such a long time. Can you shed some light on your experiences as a journalist? Well, I've been a journalist for a long time, so I think there is this shortage of time to shed some light on my experiences, because as a journalist, I have had a number of experiences, huge experiences. I enjoyed my profession for about 25 years, and then I decided that I need to do something else. So I left my profession and joined this regulatory authority, which also deals with electronic media, which I was part of before joining it. So my experience as a journalist have been tremendous, rich and deep for me. It has shaped my life the way I am. It has also shaped my psychology and the way I look at things. So a number of areas it has affected me positively as well as negatively. So, sir, you've been a journalist your whole life, and now you are regulating the journalists and the electronic media body. So, you've seen both sides of the story. So, what do you feel is the difference between being a regulator and being regulated? Actually, I think more on my perspective. My perspective is much wider now. Earlier, I never knew how public sector works and what are the responsibilities of a regulator. As a media person, I never took regulator very seriously. I think that's the problem with media persons now, which I realize when sitting on other side of the table. And that's why we are trying to make our working more interactive with media, because there was a wall, thick, big wall between media and the regulator, electronic media and the regulator. I'm trying to break down that wall. I want to bring both regulator and the media persons close to each other, so that they could understand each other, they could understand each other's limitations, and they could also understand each other's responsibilities and requirements. That communication, enhanced communication between the two sides, will definitely positively impact media's functioning as well as regulators' functioning. So I think that's the biggest gain I have achieved here. I didn't have any experience of how a regulator thinks, what are its responsibilities, but now I'm having the experience of both sides. I think I'm in a better position to bring both closer together. Okay, sir, coming to the topic, my question to you would be that as PAMRA has placed a ban on the Indian content that was being shown on the television, and I've read your statements that you believe that there should be a tit for tat, especially in the current circumstances. I want you to tell our audience what is the significance of taking this decision based on the facts that are present, that our content is not being shown on the Indian television. What do you have to say about that? What do you think about, can I ask a question? What do you think, tit for tat is a good thing or a bad thing? I think in current circumstances, it's a very good thing. Well, I don't believe in tit for tat. I think mature and confident nations and people should take their own decision, should take their own course. So, that said, our action was not tit for tat. We have been planning this action since April this year. And we announced this action on 31st of August, and we gave 7 weeks time to all TV channels, cable operators and FM radio to restrict their content within the prescribed limits in the law. And for that we have been running a campaign, but unfortunately there was no such border tension between India and Pakistan when we announced this decision. This border tension came to surface in late September, when we were already into our campaign, we were already into our planning for about 5 weeks. So, but fortunately for us as a regulator, a kind of environment was so conducive in Pakistan that we could implement our decision in totality. But this was not tit for tat. This decision was based on rational thinking, on professionalism, and considering our own local industries' problems, local drama industries' problem. Because Indian drama is very cheap, it's old, it's not fresh, and it's available easily in the market.
So that drama, the cheap, low quality drama, was flooding Pakistani market, which was damaging our own drama industry. So to protect that drama industry, we wanted to restrict that content within limit. But as the situation changed and the tension between the two countries arose, there was public pressure, public interest to ban this Indian content completely. So from 6% to 0%. This is the only change we have done. Otherwise, they were most of the TV channels, they were showing Indian content up to 80-90% of their total 24-hour time. So we brought them down to 6%, but from 6 to 0 was because of the public interest. So there is a difference. There is no tit for tat. We did not ban our a TV channel to show Indian content because India was banning our artists. I believe that there might not be boundaries between culture and art, but then there were boundaries being erected for Pakistani art and culture to be shown in India, which was unfair for our industry. So this is a professional and commercial decision. It has nothing to do with current border situation between Pakistan and India. Now we have offered India that if they allow Pakistani arts and culture to be shown in India, we will also allow that in Pakistan. Otherwise, one-way traffic will not continue. So if, like you mentioned, public interest, if we talk specifically about the fact that our artists were publicly shamed in India and even sent back, which was a very shocking thing for us and for them, because they believed that working in India was much more beneficial for them than working in Pakistan. So this recent development and then the PAMRA's decision to ban Indian content, do you feel that that might have been a provoking factor for PAMRA to finally take a step? No. Actually, it might have provoked public sentiment, because when public saw their Pakistani artists are being banned in India, that's why they were still watching some 6% content on Pakistani TV channel, that might have provoked them, and that's why they were pressuring us so much. But our decision is not based on any provocation. We don't believe in provocation. As I mentioned, we are a mature nation, we are a confident nation, we are a mature authority, we are a confident authority. We don't take decision on knee-jerk as knee-jerk reactions. So, but India, of course, I agree with what you mentioned, that India did not show maturity. It did not take decision based on professionalism. It just went by the extremist element within India. It got under pressure. In Pakistan, there is no such extremist element on the surface. People are not protesting on the street against Indian content as was being done in India against Pakistani artists and culture. So I think there's a difference, and so the difference is also in our decision making. We never said that this ban is forever. We said we will open our market as much as India does. So India should behave like a bigger country. India should behave because it claims it's a bigger democracy. India should also behave because it has a larger stake in this region, and it should not behave all the time as an immature and a nation which lacks confidence in its own principles and laws. So I think in this current tension, again, Pakistan has come up with a more mature nation and a country vis-a-vis India. Okay, we're going to take a very short break over here and continue our discussion. Stay with us. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हम चेयरमैन पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी अफसर आलम से बात कर रहे थे. सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा. आई हैव ऑलरेडी implied from the discussion that we've had so far that you're not in favor of a complete cultural boycott, because cultural boycott would mean कि हमारे आर्टिस्ट वहाँ पे जाके काम ना करें या उनके आर्टिस्ट यहाँ पे आके काम ना करें और यहाँ पे उनकी कॉन्सर्ट्स ना हो, हमारे कॉन्सर्ट्स वहाँ पे ना हो. तो I'm implying that this is not what PAMRA wants, or as you as a chairman of PAMRA does not desire to have in the future. But do you agree with that? Yes, I do agree, because as we agreed that art and cultures do not have boundaries, and I strongly believe that Pakistani art and culture and music is very strong, very professional. हमने बहुत अच्छे आर्टिस्ट प्रोड्यूस किए हैं. आप देखें पिछले कुछ सालों से जो इंडियन मूवीज़ आ रही हैं, जो ब्लॉकबस्टर इंडियन मूवीज़ हैं, उसमें either actor is Pakistani, or an actress is Pakistani, or a singer is Pakistani, or a musician is Pakistani, or
theme is Pakistani. So one way or the other, Pakistan figures prominently in Indian in film industry. इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में जो ब्लॉकबस्टर्स हैं वो पाकिस्तान के बगैर कंप्लीट नहीं है. तो वी शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. हमारा वहाँ पे इतना कंट्रीब्यूशन है इंडियन जो बॉलीवुड सिनेमा की हिस्ट्री है पिछले 150 साल की, उसमें हम जो पाकिस्तान है इस खिते का मेजर कंट्रीब्यूशन है. एक्चुअली द फाउंडिंग फादर्स वर फ्रॉम दिस एरिया ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री. तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम इंडिया को है. इंडिया आई थिंक स्टिल डू नॉट फील एज कॉन्फिडेंट एज पाकिस्तानीज आर. और इंडिया के आर्टिस्ट को, इंडिया की इंडस्ट्री को कलेक्टिवली और वहाँ के जो एक्सट्रीम एलिमेंट है उनका ख्याल है कि अगर उन्होंने ये बाउंड्रीज क्रिएट ना की तो पाकिस्तान का जो आर्टिस्ट है वो इंडियन इंडस्ट्री को किसी वक्त डोमिनेट कर जाएगा. और जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं भी, जैसे मैंने आपको अभी मेंशन किया, ब्लॉकबस्टर्स देख लें पिछले जो वो क्या होता है कपूर एंड सन्स, नहीं कपूर एंड सन्स, मैं फिल्म का नाम नहीं ले रहा, ये जो हाउस बॉक्स ऑफिस पे जो ब्लॉकबस्टर्स होते हैं उसमें आप देख लें कुछ ना कुछ एक ना एक चीज़ ज़रूर पाकिस्तानी है. तो आई थिंक इंडिया को इसका ख़तरा है, हमें इसका ख़तरा नहीं. इंडिया को बड़ा होना चाहिए, उम्र में भी बड़ा हो गया, अब तो सोचना चाहिए कि फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट. यू मेंशन कि जैसे इंडिया बाउंड्रीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है बिकॉज उन्हें लगता है कि हम उनसे कहीं आगे ना निकल जाएं. पैमरा ने जो डिसीजन ली कि दे फाइनली पुट देयर फुट डाउन और थ्रू एंड थ्रू बैन कर दिया इंडियन कंटेंट, इससे क्या इंडिया को ये मैसेज मिल रहा है कि हम भी बाउंड्रीज अब क्रिएट करेंगे? देखिए, इंडिया को मैसेज तो बहुत वाज़ेह मिला है, क्योंकि इंडिया की जो ड्रामा इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है और उनका ड्रामा यहाँ पे बहुत आ रहा था. उनकी ड्रामा इंडस्ट्री उतनी कामयाब नहीं जितनी उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री कामयाब है. तो और अगर वो उन्होंने अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तान के आर्टिस्ट के लिए बैरियर्स क्रिएट किए हैं, तो हमें एक कमर्शियली ये वायबल नहीं है कि हम उनकी ड्रामा इंडस्ट्री, जो कि फेल्ड इंडस्ट्री है, जो उतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री है, देयर इज़ नो मैच. पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री बहुत एडवांस्ड स्टेज पे है और बहुत क्वालिटी प्रोडक्शंस करती है, उसको हम नुकसान पहुंचाते रहें वन वे ट्रैफिक के ज़रिए. तो ये दुनिया की कोई कंट्री अपनी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करके किसी दूसरे कंट्री की इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करता. तो हमारी भी ये ड्यूटी थी एज रेगुलेटर, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी है. तो हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है. सर, सोसाइटी का एक सेगमेंट है जो इस बात पे बिलीव करता है कि अगर हम सिनेमाज़ में इंडियन जो अभी जिस तरह हो रहा है फिल्म्स को बैन कर देंगे तो हमारे सिनेमा उससे सफ़र करेंगे, जो हमारा रेवेन्यू है वो उतना जनरेट नहीं होगा और उससे हमारे सिनेमास पे बहुत बुरा इफेक्ट आएगा. लेकिन एक और सेगमेंट है जो ये बिलीव करता है कि इससे हमारी फिल्म्स को मौका मिलेगा कि वो बेहतर कंटेंट बनाएं और अपने आप को इन सिनेमाज में एज अ बेटर कंपेटिटर लाएं और अपना नाम बनाएं. तो आप कौन सी साइड पे इसको देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए. कंप्लीट इनफ्लो और इन्वेजन ऑफ इंडियन मूवीज़ और ड्रामाज इनटू पाकिस्तानी मार्केट्स या कंप्लीट बैन, दोनों ही सॉल्यूशन नहीं है. सॉल्यूशन इज़ समवेयर इन द मिडल, जिसमें आप एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट रखते हैं, जिसमें आपकी लोकल इंडस्ट्री, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो ड्रामा हो, वो सफ़र ना करे, लेकिन उसके साथ साथ उस लोकल इंडस्ट्री की मोनोपोली भी क्रिएट ना हो जाए एंटरटेनमेंट पे या आर्ट पे या कल्चर पे, कि जो व्यूअर्स हैं, जो लोग हैं, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्वालिटी स्टफ़ चाहते हैं वो ना उनको मिल सके. अगर कंपटीशन नहीं होगा तो क्वालिटी स्टफ़ वो नहीं रहेगा जो होना चाहिए. जैसे हमारी कार इंडस्ट्री है, उसमें मोनोपोली है पाकिस्तान में, कार जो लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन उसकी वजह से क्वालिटी सफ़र कर रही है, कई सालों से कर रही है. तो इसीलिए हुकूमत ने थोड़ी सी कार की इंपोर्ट्स पे पाबंदी को नरम भी किया है, इसीलिए ताकि एक हेल्दी कंपटीशन होता है वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइफ लाइन होता है. तो हेल्दी कंपटीशन मेरे ख्याल रहना चाहिए, लेकिन फ्री फ्लो नहीं होना चाहिए. सर, पैमरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसका कंसर्न ही सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, प्रिंट मीडिया या बाकी चीज़ें नहीं आती. बट लाइक यू मेंशन कि हमारी इंडस्ट्री उनको बहुत फ़ायदा पहुंचाती है इन सम वे और द अदर, एंड विच इज़ ट्रू, विच इज़ समथिंग दैट वी कैन एग्री विद. लेकिन दोनों साइड्स ऑफ द बॉर्डर की इकोनॉमीज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे क्या इंडियन कंटेंट ख़त्म हो जाने से पाकिस्तानी इंडस्ट्री कितना बेनिफिट करेगी और इंडियन इंडस्ट्री को कितना नुकसान होगा? देखिए, इंडियन इंडस्ट्री, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, लेकिन उनकी ड्रामा इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, उसको थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा.
लेकिन पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को इससे फ़ायदा होगा डेफिनेटली, क्योंकि पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री थी उसको पाकिस्तान के जो बड़े टीवी चैनल्स हैं उनका प्राइम टाइम में नहीं मिल रहा था, और अगर मिल भी रहा था तो उनके ड्रामा के जो बायर्स थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, इसलिए उनकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी, प्रॉफिट लेवल्स कम थे। अब वो कॉस्ट भी अपनी बेहतर कर रहे हैं, अब स्पेस मिली है मज़ीद उन्हें पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर, ख़ास तौर पे प्राइम टाइम स्पेस खाली हुई है, तो उसमें डेफिनेटली कुछ फिल करने के लिए आप अब टीवी चैनल चला रहे हैं, आपको पता होगा 24 आवर्स फिल करने के लिए आपको कितना कुछ करना पड़ता है, तो अब उसमें बिल्कुल इंडियन स्टफ़ नहीं आ रहा, तो वो वैक्यूम पाकिस्तानी ड्रामा फिल करेगा। जब वो पाकिस्तानी ड्रामा फिल करेगा, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी पाकिस्तानी इंडस्ट्री को। इससे पाकिस्तानी इंडस्ट्री, पाकिस्तानी आर्टिस्ट और जो बाकी जो ये जितने लोग काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, कैमरा पर्सनस हैं, टेक्नीशियंस हैं, दूसरे लोग हैं, वो सब उससे उनको एक रोज़गार के मौके ज़्यादा मिलेंगे। तो इससे पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है लोकल, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी भी अब बढ़ गई है कि वो इस जो उनको स्पेस मिली है इसका बेहतरीन फ़ायदा उठाएं और अपनी कॉस्ट कम रखें और क्वालिटी प्रोड्यूस करें। अगर उन्होंने क्वालिटी लो कर ली और कॉस्ट बढ़ा दी सिर्फ इसलिए कि अब तो स्पेस मिली, अब हम प्रॉफिट जितना ज़्यादा से ज़्यादा लें, तो फिर ना उनको फ़ायदा होगा इन द लॉन्ग रन, ना ही पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को फ़ायदा होगा। सर जिस तरह अभी 6% से 0% इंडियन कंटेंट कर दिया गया है, अभी भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स होंगे जो नशर करना चाहेंगे या कर लेंगे, और आपने जिस तरह काफ़ी सारी DTH और सैटेलाइट नेटवर्क लाइसेंसेस भी सस्पेंड किए हैं मौजूदा दिनों में, आपका क्या ख्याल है, या क्या पेनल्टी होगी पैमरा की तरफ से ऐसे नेटवर्क्स को जो अभी भी इंडियन कंटेंट शेयर करेगी? एक देखें, हो सकता है चाह रहे हो कुछ, लेकिन हम उनके चाहने का तो कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त जो कानून है उस पर उन्हें अमल दरामद करना है, और उस पर हम बहुत क्लियर हैं। हम किसी को भी कानून को तोड़ने की इजाज़त नहीं देंगे, चाहे वो जितना भी ताकतवर हो, और इसका भी हमने अमली तौर पर मुजाहरा करके दिखा दिया है। तो और अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है, हम मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, 24 घंटे हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं तमाम टीवी चैनल्स की, हमारे पास रिकॉर्ड है। हम थर्ड पार्टी से भी मॉनिटरिंग करवा रहे हैं, जो प्राइवेट फर्म्स काम करती हैं मॉनिटरिंग काम, उनसे भी रिपोर्ट्स ले रहे हैं, हम उनको टैली कर रहे हैं रिपोर्ट्स को, कहीं कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। अगर कहीं पे किसी ने खिलाफ वर्जी की तो बग़ैर शोकाज़ नोटिस दिए हम फौरी तौर पे उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। वो एक्शन जुर्माना भी हो सकता है, वो एक्शन लाइसेंस की सस्पेंशन भी हो सकती है, वो एक्शन लाइसेंस को मनसूख किया जाना भी हो सकता है। तो इसलिए हम इस पे बहुत क्लियर हैं, हमने ये वाज़ेह मैसेज दे भी दिया है। सर, अगर हम इस डिस्कशन को सम अप करें अपने टॉपिक को नज़र में रखते हुए, कल्चरल बायकॉट विद इंडिया, व्हाट डू यू फील कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन का क्या उस पर असर होगा या हुआ है इस डिसीजन का पैमरा की? देखिए, बायकॉट का लफ्ज़ हमें नहीं कम अज़ कम यूज़ करना चाहिए। हमने बायकॉट नहीं किया, इंडिया ने किया है। हमारे यहाँ अभी भी फ़िल्म्स चल रही हैं इंडिया की, इंडिया में पाकिस्तान की फ़िल्म्स नहीं चल रही। हमारे सिर्फ मैंने बताया कि जो टीवी पे ड्रामे हैं और जो म्यूज़िक उनका एक्सेसिव चलता था उसको हमने बंद किया है। बाकी एज सच हमने बायकॉट नहीं किया, बायकॉट नहीं होना चाहिए। लेकिन टेंशन ज़ाहिर है, जब दो मुल्कों की सलामती का, दो मुल्क अपने अपने वतन की प्रोटेक्शन का ख्याल आता है सबको, तो उसकी इंडस्ट्री का भी वो भी साथ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर इंडिया बड़ा मुल्क है, अगर वो ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करता, वो जमहूरी रवैया नहीं अपनाता, वो अपने आप को बड़ा मुल्क होते हुए पाकिस्तान पे अपनी पॉलिसियाँ ठोंसना चाहता है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान छोटा मुल्क तो है लेकिन आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना जानता है। तो पाकिस्तान अपने अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपनी इंडस्ट्री के राइट्स के लिए वो सब कुछ करेगा जो उसको उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। इस पे इंडिया को कोई अभाम नहीं होना चाहिए। और उस पर फिर मैं ये कहूँगा कि इंडिया का बड़ा मुल्क होते हुए, बड़ी जमहूरियत होते हुए, इंडिया का पहला फ़र्ज़ है कि वो लार्ज हार्टेडनेस शो करे। अगर वो अपनी इंतहा पसंद एलिमेंट के नरगे में से नहीं निकल सकते तो वो पाकिस्तान से एक्सपेक्ट ना करें कि पाकिस्तान अपने राइट्स की तरफ से आंखें बंद कर ले। Thank you so much, sir. Thank you, sir. We hope you enjoyed the discussion on this topic. See you next time. My name is Raja Saroor Sohaib. And I'm Doab Sar. Allah Hafiz.